سوال: یکم محرم الحرام کو سورۃ فاتحہ کتنی بار پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز کے بعد 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے؟ جواب: قسم۔ سوال: گھر میں مشکل آ جائے تو روٹی پر کیا لگا کر کھانا چاہیے؟ جواب: نمک لگا کر۔ سوال: دعا کو کس چیز کا مغز کہا جاتا ہے؟ جواب: عبادت کا۔ سوال: بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار اور قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار اور قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، تاہم قرآن پڑھتے وقت احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، مگر اگر کوئی خاص وجہ ہے تو لیٹ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ درود شریف اور ذکر میں ایسی کوئی قید نہیں، آپ انہیں کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے سے جسم میں کوئی زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: اجوا کھجور۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو عورت اکیلے نہیں کر سکتی؟ جواب: حج۔ سوال: کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: سیب کس ملک کا قومی پھل ہے؟ جواب: جرمنی ملک کا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے؟ جواب: منہ پر مارنے سے۔ سوال: سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب: آگ۔ سوال: اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 دن کا۔ سوال: دنیا کا سب سے تیز اگنے والا درخت کون سا ہے؟ جواب: بانس کا درخت۔ سوال: کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے کتنی لڑکیاں پیدا ہوئی؟ جواب: 4۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: عقل مند کے عیبوں میں اور بے وقوفوں کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو دیکھتا ہے جبکہ بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ سوال: مرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی آتی ہے۔ سوال:
किस वक्त की नमाज की सुन्नत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त की नमाज की सुन्नत तर्क ना करना चाहिए, तुमको घोड़े कुचल डालेंगे। जवाब, नमाज फजर के सुन्नत के बारे में। सवाल, जन्नत की जमीन किस चीज की बनी हुई है? जवाब, ज़फ़रान से। सवाल, अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी और की मन्नत मानना कैसा अमल है? जवाब, हराम है। सवाल, किस उम्र के बाद मर्द और औरत के लिए बच्चा पैदा करना जायज नहीं है? जवाब, जब तक कुव्वत सलाहियत बाकी रहे औलाद के लिए कोशिश की जा सकती है। दीन इस हवाले से कोई भी उम्र की हद की पाबंदी नहीं है। सवाल, नमाज जनाजा दिन में पढ़ना जायज है या रात में? जवाब, हर वक्त जायज है मगर दिन में अफजल है। सवाल, हजरत फातिमा क़यामत के दिन मैदान हशर में किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अज़ा पर सवार होकर आएंगी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद को जला देने का हुक्म दिया? जवाब, ग़ज़वा तबूक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद दरार जला देने का हुक्म दिया जो मुनाफिकीन की साजिशों का मरकज थी। सवाल, दुनिया की चीजों में इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? जवाब, नेक बीवी। सवाल, शादी के बाद किस सूरत की तिलावत करने से जिंदगी में खुशियां आती है? जवाब, अगर आपकी बेटियां इज्जत के साथ घर से रुखसत हो गई हैं लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं है तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और अपने घर में सूरत मुजम्मिल की तिलावत करें और हर नमाज के बाद अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ करें और हर शादीशुदा लड़की भी रोजाना अपने घर में सूरत मुजम्मिल पढ़ने का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह उसे खुशियां नसीब होगी। सवाल, बीवी कितने दिनों बाद अपने मेके जा सकती है? जवाब, बीवी अपने खाविंद की मर्जी से कभी भी अपने मेके जा सकती है। हमारे दीन इस्लाम में इस बारे में कोई दिन मुकर्रर नहीं किए और ना ही कोई पाबंदी लगाई है। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस की तस्वीर निकाह से पहले दिखाई गई और किस चीज पर दिखाई गई? जवाब, अल्लाह ताला ने हजरत आयशा की तस्वीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले रेशम के सब्ज टुकड़े पर दिखाई। सवाल, आपके घर की वो कौन सी जगह है जो आपको बीमार करती है? जवाब, इंसान के घर की वह जगह जो इंसान के लिए तरह तरह की बीमारियों का बास बनती है वो जगह बैतुल खला है, क्योंकि बैतुल खला में खबीस जिनात का ठिकाना होता है और दुआ न पढ़ने वाले को ये गलीज चीजें मुतासर करती हैं। 90% रूहानी और 50% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ बैतुल खला से है। इनसे बचने के लिए बैतुल खला की दुआ पढ़ना जरूरी है। सवाल, 6 महीने से ज्यादा अगर कोई तस्बीह पढ़ी जाए तो इंसान के साथ क्या होता है? जवाब, जो इंसान तवील अरसा तक मिसाल के तौर पर 2 या 3 साल तक तस्बीह करता है तो फिर उसकी तस्बीहात ताकतवर हो जाती है। अगर कोई शख्स 3-4 तस्बीहात रोजाना करता है 3-4 साल से तो वो तस्बीहात उसके इर्द गिर्द नूर के हिफाजती पलर बन जाती है। इंसान को उन तस्बीहात का आसरा हो जाता है, इंसान की बलाएं टलती हैं। मुख्तसर ये कि ज्यादा तस्बीहात करने वाले इंसान की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जो हो जाती है और वो इंसान कभी भी ज़हनी दबाव में नहीं रहता। हो सकता है इंसान पर कोई ना कोई परेशानियां आ जाए मगर वो इंसान अल्लाह की मदद से उन परेशानियों का सामना कर लेगा, लेकिन वो कभी भी
या ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होगा इंशाअल्लाह। सवाल, घर में कौन सा अमल करने वाले के जिस्म में शैतान दाखिल हो जाता है? जवाब, बाथरूम में रोना। बाथरूम में रोना शैतान को दावत देना, लिहाजा इस काम से गुरेज करें और बाथरूम को रोजाना साफ सुथरा रखें। रात को बाथरूम साफ करके सोने से भी शैतान घर से दूर रहते हैं। सवाल, वो कौन सी मिठाई है जिसे खाना मुसलमानों के लिए हराम है? जवाब, इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसे खाना या कबूल करना हराम है और उस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत करना नाजायज है। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन तक रहे थे? जवाब, 3 दिन और रात। सवाल, सबसे पहले जहन्नुम में किसको डाला जाएगा? जवाब, काबिल को। सवाल, कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में है? जवाब, 9वें पारे में। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सा रंग देखने से नजर तेज होती है? जवाब, सब्ज रंग देखने से। सवाल, किस फर्ज अमल को जन्नत की चाबी कहा जाता है? जवाब, नमाज को। सवाल, सबसे पहले किस नबी की उम्मत से हिसाब लिया जाएगा? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। सवाल, किस तरह खाना खाने से खाना मकरूह होता है? जवाब, ज्यादा गर्म खाने से। सवाल, खाना काबा का दरवाजा कितने किलोग्राम सोने से बनाया गया है? जवाब, 280 किलोग्राम। सवाल, वो कौन से मुसलमान है जिसका नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब, जिसने अपने वालिदैन को कत्ल किया हो। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किस मखलूक से हिसाब लिया जाएगा? जवाब, फरिश्तों से। सवाल, कौन सा अमल करने से मोमिन के दिल को सुकून पहुंचता है? जवाब, अल्लाह का जिक्र करने से। सवाल, किस मुसलमान का जूठा पीना हराम है? जवाब, शराबी का पीना। सवाल, कौन सी मिट्टी जिस्म पर लगने से फरिश्ते दुआ करते हैं? जवाब, सजदे की मिट्टी। सवाल, नमाज में सुस्ती करने वाला क़यामत के दिन किस जानवर की शक्ल में होगा? जवाब, सूर की शक्ल में। सवाल, औरत के जिस्म के किस हिस्से पर निशान पड़ जाना जादू की अलामत है? जवाब, नाखून में। सवाल, कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? जवाब, वालिदैन का नाफरमान। सवाल, ऐसा कौन सा दरख्त है जिसे मुसलमान दरख्त कहा जाता है? जवाब, खजूर का दरख्त। सवाल, हदीस के मुताबिक इंसान की सबसे अच्छी आदत क्या है? जवाब, कुरान की तिलावत करना। सवाल, किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? जवाब, मस्जिद निमरा। सवाल, कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? जवाब, खुद अल्लाह ताला ने। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसे घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है?
जवाब नफिल नमाज घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में सादिक और अमीन का लक़ब मिला था? जवाब 25 साल की उम्र में। सवाल वो कौन सा जानवर है जिसे जन्नत की दोस्त कहा जाता है? जवाब बिल्ली को। सवाल ख्वाब में कौन सा जानवर देखना दुश्मन का इशारा है? जवाब सांप को देखना। सवाल वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्द आ जाती है? जवाब जोड़ों का दर्द। सवाल दिल की घबराहट को दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब सूरह अलम नशरा। सवाल नमाज के दौरान जिमाई आना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब नमाज के दौरान या कुरान पाक पढ़ते हुए सुस्ती और फरहबी की अलामत है। अच्छे काम करते हुए नजर बद की अलामत भी हो सकता है, लिहाजा हर वक्त सदका देते रहा करे और इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना ले। सवाल वो क्या है जिसे खाना और खिलाने वाला दोनों लानती है? जवाब सूद। सवाल किस मखलूक के असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब शैतान की वजह से। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसे करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब गीबत करना। सवाल इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से काला हो जाता है? जवाब दिल। सवाल क्या चीज खाने वाले की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती हैं? जवाब हराम का लुकमा खाना। सवाल ऊंचाई चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? जवाब अल्लाहु अकबर। सवाल हदीस के मुताबिक इंसान किस तरह सोने से बीमार होता है? जवाब पेट के बल सोना। सवाल हदीस में औरत का जेवर किस चीज को कहा गया है? जवाब हया को। सवाल दुनिया में नशा करने वालों को अल्लाह ताला उनको दोज़ख में क्या पिलाएगा? जवाब दोज़खियों का पसीना। सवाल अहले जन्नत की पहली ग़ज़ा क्या होगी? जवाब मछली का जिगर। सवाल क्या अल्लाह ताला के लिए लाज़ो तो इस्तेमाल करना जायज है? जवाब जायज है। सवाल जन्नत में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या होगा? जवाब अल्लाह ताला का दीदार। सवाल कौन सा अमल करने वाला इंसान गुनहगार से भी ज्यादा बदनसीब है? जवाब रियाकारी करने वाला। सवाल सबसे पहले किस इंसान ने वालिदैन की नाफरमानी की थी? जवाब काबिल ने। सवाल किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब मछली का गोश्त। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज हमेशा अपने साथ रखते थे? जवाब मुसवाक। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता है? जवाब नमाज जनाजा। सवाल किस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है? जवाब फलस्तीन को। सवाल उन फरिश्तों का नाम क्या है जो कब्र में इंसान से सवालात पूछेंगे? जवाब मुनकर नकीर। सवाल
نماز کے دوران ہوا خارج ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسے شخص پر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہوگا، لہذا تنہا نماز ادا کر رہا ہو یا با جماعت، بہر صورت اسے چاہیے کہ ہوا خارج ہوتے ہی وضو کے لیے چلا جائے، بے وضو حالت میں نماز کے اعمال ادا نہ کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اخراج ہوا کا تقاضا ہو تو بمشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کے بجائے ہوا کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ سوال: آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔